यस सर, आ जाइए। वेलकम टू दी अनदर क्वेश्चन है डिस्कशन एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। न्यू सिलेबस वालों के लिए है ये, ओल्ड सिलेबस वाले अगर आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ इसे मत देखिए, आप नेक्स्ट टॉपिक पे ऊपर जा सकते हैं। राइट, हाँ, हालांकि आपके जितने दोस्त हैं जो न्यू सिलेबस के अंदर में होंगे तो प्लीज़ उन्हें फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा। आइए, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ब्रीफली द जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक डबल taxation. How does the law provide for the remedial measures? November 2019 and it's a new syllabus question. Jurisdictional double taxation, जरा समझिए क्या होता है। Jurisdictional double taxation एक आम डबल टैक्सेशन है, whereas सोर्स कंट्री उनके डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से टैक्स लेती है और कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट उनके डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से टैक्स लेता है। दैट इज सिंपली अ जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन तब अराइज होता है व्हेन इट इज टैक्स्ड इन द हैंड ऑफ टू डिफरेंट पर्सन, इन द हैंड्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सन। यस, जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन से लड़ने के लिए आपके पास डीटीडब्ल्यू पड़ा हुआ होता है। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन से लड़ने के लिए जनरली डीटीडब्ल्यू मदद नहीं करता, बट म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर मदद करती है। म्यूचुअल अग्रीड प्रोसीजर वो मदद करती है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन से बचने के लिए। आइए ध्यान देते हैं। जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन, accordingly when the source overlaps double taxation may arise, that is the tax may be imposed by two or more countries as per the domestic law in the respect of the same transaction. Income arise or deemed to arise in respect of their respected jurisdiction, this is known as jurisdictional double taxation. This can also be explained in the help of example. A particular income is taxed in the hands of a person in the country in which it arises and also the country in which he is resident by way of a domestic tax law. This gives rights to jurisdictional double taxation. In order to avoid such double taxation, company has to invoke the provision of DTAA. Economic double taxation, this happens when the same transaction of item or capital is taxed in two or more state but in the hands of different person. मान लीजिए इंडिया के अंदर में किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने क्या किया, शेयर ऑफ फर्म लिया, ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बट वन ऑफ द पार्टनर इज नॉन रेसिडेंट और वहाँ शेयर ऑफ फर्म टैक्सेबल है, तो ऐसे केस में ये जो टैक्सेशन हुआ ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हुआ इन द हैंड्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सन। सो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन दिस हैपन व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन, item of income or capital, is taxed in two or more state but in the hands of different person because of the lack of subject identity. For example, if a firm, income of a firm is subject to tax, partner share in the income of firm is exempt. However, if the partner is resident of another country where share of income is taxable, this is called as economic double taxation. They generally do not cover tax treaties and mutual agreed procedure provide relief in such cases. तो उस केसेस में mutual agreed procedure क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। Then next point, next question, do you agree that the tax treaty are to be interpreted legally? If so, why? देखिए, सिर्फ लीगली नहीं, इन गुड फेथ भी रीड किया जाता है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काय से रिलेटेड पता है, आर्टिकल 31 ऑफ द वियना कन्वेंशन जो कहता है कि भैया ट्रीटी को लिबरली एज वेल एज गुड फेथ के साथ रीड करना होता है। जब हम उसे रीड करते हैं तो प्रीएम्बल और एनेक्स्चर को भी हमें रीड करना पड़ता है ताकि उसका लिटरल मीनिंग बाहर आ सके, राइट? So Article 31 of the Vienna Convention of the Law Treaties contain the general provisions of interpretation. It lays down the following general rules of interpretation. The treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to the term thereof in the context and in light of the subject and purpose. The context of the purpose of interpretation shall comprise, in addition to the text, प्रीएम्बल एंड एनेक्स्चर। तो टेक्स्ट के अलावा जब हम इंटरप्रीट करते हैं तो प्रीएम्बल और एनेक्स्चर को भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि प्रीएम्बल और एनेक्स्चर में क्या लिखा है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और किस तहत वो बनाए गए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? एनी अग्रीमेंट रिलेटेड टू द ट्रीटी विच वॉज मेड बिटवीन टू पार्टीज इन कनेक्शन विद द कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी, any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty. Following shall be taken into account together with the context. Context जो उस treaty के अंदर में लिखा है, इसके अलावा कुछ चीज़ें और लेनी पड़ती है। Any subsequent agreement between the parties. देखिए, दो पार्टीज के बीच में सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा अग्रीमेंट डीटीडब्ल्यू का पार्ट बन सकते हैं, तो सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट भी कुछ हुआ होगा, तो इंटरप्रिटेशन करते वक्त हमें वो सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट को भी इंटरप्रीट करना पड़ेगा।
and subsequent practice in application of treaty which establish the agreement of the parties regarding the interpretation. इसके अलावा कुछ पार्टीज ने कोई प्रैक्टिस स्टैब्लिश की होगी म्यूचुअली अग्रीड बेसिस पे, तो वो भी हमें लेना होगा ट्रिटी के इंटरप्रिटेशन के लिए. relevant rule of international law applicable to the relation of the parties and special meaning shall be given to term if it is established that parties are so intended. तो अगर कोई पार्टीज को लगता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को स्पेशल मीनिंग देना चाहिए, उसे डिफाइन करना चाहिए, तो ट्रिटी के अंदर में वो भी हो सकता है. तो ट्रिटी को क्या लिबरली देखना पड़ता है? हाँ, ट्रिटी को लिबरली देखना पड़ता है, गुड फेथ में देखना पड़ता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम DTAA अगर कोई सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट होगा उसे भी देखना पड़ता है, कोई प्रैक्टिस होगी म्यूचुअल अग्रीड प्रैक्टिस वो भी देखनी पड़ती है, कोई रिलेवेंट इंटरनेशनल लॉज होंगे वो भी होगा, और साथ साथ में अगर कोई और मीनिंग पार्टीज अग्रीड करती है तो वो भी देखते हैं. दैट्स हाउ वी इंटरप्रीट द ट्रिटी इन अ लिबरल मैनर. हम सिर्फ स्टक नहीं हो जाते DTAA पे, हम बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं. चेक कर लीजिए. डन. नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं. एग्जामिन एंड स्टेट द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरनेशनल टैक्स ट्रिटी. इंटरनेशनल टैक्स ट्रिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ चीजें बतानी है, ठीक है. प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन कलेक्शन ऑफ फेयर एंड लेजिटिमेट शेयर ऑफ टैक्स बाय द कंट्रीज इन्वॉल्व इज द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स ट्रिटी. क्या टैक्स ट्रिटी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया किसी को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो दे दो ना? सेक्शन 90 हमें बताता है कि भैया कोई भी टैक्स ट्रिटी एंटर होती है मेजरली इसके 4 राइट होते हैं. एक, एलोकेटिंग द टैक्स राइट. DTAA लॉ नहीं बनाता, DTAA टैक्स राइट डिवाइड करता है दो कंट्री के बीच में. सो एक पावर होता है एलोकेशन ऑफ टैक्स राइट, दूसरा होता है एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन. DTAA में ऐसे प्रोविजन डालना कि बॉस टैक्स क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, जो डबल टैक्स लग रहा है वो एलिमिनेट हो जाए. तीसरा होता है कि बॉस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इफ एनी, और चौथा होता है एंश्योरिंग द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. The object of the treaty also includes allocating the tax right, eliminating double taxation, ensuring the non-discrimination and resolution of dispute on account of different tax interpretation. Question number 2. A protocol is an integral part of tax treaty and has the same binding force as the main clause. बिल्कुल सही. Protocol means rules. Rules has the same binding effect. So protocol is like a supplement to the tax treaty. In many tax treaty, in order to put certain matters beyond doubt, there is a protocol annexed at the end of the treaty, which clarifies the borderline issues. Thus, one must refer to the protocol before arriving at the final conclusion. डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनिस्ट व्यू एंड ड्यूलिस्ट व्यू. हम भैया इंडिया वाले तो मोनिस्ट व्यू पे जाते हैं, ड्यूलिस्ट व्यू पे नहीं जाते. हालांकि ऐसी कुछ कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नॉर्वे, ये ड्यूलिस्ट व्यू पे भी वर्क करती है. मोनिस्ट व्यू क्या कहता है? मोनिस्ट व्यू कहता है DTAA बिकेम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डोमेस्टिक सिस्टम, और दोनों साथ साथ में मिल करके वर्क करते हैं. जबकि ड्यूलिस्ट व्यू कहता है दैट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सेम सिस्टम, ये अलग अलग है. DTAA अलग है और डोमेस्टिक लॉ अलग है. अब आप इंडिया को ही ले लीजिए. मोनिस्ट व्यू का एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं. हम सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 मोनिस्ट व्यू के कारण आया. सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 मोनिस्ट व्यू के कारण आया है. क्या कहता है बेटा मोनिस्ट व्यू? मोनिस्ट व्यू कहता है कि प्रोविजंस ऑफ DTAA, और मोनिस्ट व्यू कहता है प्रोविजंस ऑफ DTAA और, बोलो भाई, इनकम टैक्स एक्ट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी विल बी कंसिडर्ड. दिस इज मोनिस्ट व्यू, जहां पे DTAA और डोमेस्टिक लॉ साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों को अलग अलग नहीं देखा जाता, राइट. विच एवर इज मोर बेनिफिशियल उसे कंसिडर किया जाता है. DTAA जनरली हैज अ ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, पर कई कंट्रीज में DTAA डू नॉट हैव अ ओवरराइडिंग इफेक्ट एंड द डोमेस्टिक लॉ हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट. इंडिया मोनिस्ट व्यू फॉलो करता है, ड्यूलिस्ट व्यू नहीं.
याद आ रहा है, अपन लोगों ने ये लेक्चर में भी बहुत डीप में पढ़ा हुआ है. सो Income Tax Act 1961 provide that where Indian government has entered into DTAA which are applicable to the taxpayer, then the provision of the act shall apply to the extent they are more beneficial to taxpayer. Internationally, this situation is called as monist view, wherein national and international law are part of the same system. National and international law part of the same system where DTAA overrides the domestic law. Another prevalent view is dualist view, wherein international law and national law are separate system and DTAA becomes the part of national system by specific corporation oblique legislation. DTAA को तभी इंसर्ट किया जाएगा जब लॉ स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दे. ड्यूलिस्ट व्यू आर अडॉप्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नॉर्वे, जर्मनी एंड यूके. चेक कर लो मालिक. Done. Question number 4, do it on yourself. Easy one. Question number 5. Mark this as important. Question number 5, the last question, mark it as important. In addition to allocating the tax right and eliminate the double taxation, there are various important consideration while entering into tax treaty. क्वेश्चन ने क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कंसिडरेशन वाइल एंटरिंग इनटू टैक्स ट्रीटी. कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम ट्रीटी के अंदर में एंटर होते. इक्विटी एंड फेयरनेस अगर याद आ रहा हो तो, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, वो वाले पॉइंट. In addition to allocating the tax right and eliminating double taxation, there are various other important consideration while entering into a tax treaty as mentioned below. Ensuring non-discrimination between resident and non-resident, resolution of dispute, providing assistance in collection of data. Further, in addition to the above three, 1, 2, 3, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट टाइम पे होना चाहिए और असिस्टेंस मिलनी चाहिए. इसके अलावा देर आर सम अदर पॉइंट, इक्विटी एंड फेयरनेस. सम इनकम अर्न बाय डिफरेंट टैक्स पेयर must be taxed at the same rate regardless of the source of income. Neutrality and efficiency. Neutrality factor provide that economic process should not be affected by external factors such as taxation. याद है हमने एग्जाम्पल लिया था कि भैया टैक्स इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि भैया सामने वाला आने से ही डिमोटिवेट हो जाए. इसीलिए हम लोगों ने आईएफएससी का एग्जाम्पल भी लिया था कि भैया आईएफएससी का क्लॉज ही इसलिए बनाया गया ताकि बहुत सारा फॉरेन इन्फ्लो हम इंडिया के अंदर में लेकर के आ सके. दो तरह की न्यूट्रलिटी थी, कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी, कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी, वो लिखना पड़ेगा. एंड प्रमोशन ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट. इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव होता है डीटीडब्ल्यूए का, ये ध्यान में रखना कि भैया एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशन और ट्रेड प्रमोट हो. सो ये देख लीजिए आप एक बार, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखिए. डन, दैट्स इट मालिक. यहाँ हमारा ये भी ओवर होता है. थैंक यू सो मच. एक और चैप्टर खत्म. आप इस पूरी सीरीज में बने रहिए, आपको कुछ और टॉपिक्स मिलने वाले हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए. थैंक यू सो मच. टेक केयर.